Hello, my dear students. Today we will discuss an important topic, that is writing skills. Writing skills, it will carry this section, rather in your examination, it will carry at least 20 marks. Look at the page. This is a question paper from J.K. Bose of annual session 2019. First question, it is section C, writing skills. Question number 9 is this. Attempt any four of the following writing tasks in 80 to 100 words each. First, we have to read our questions in a very satisfactory manner. We should understand them, what response the question demands from us. You must not exceed more than 100 words, because you have to do lot, or you have to write lot on your answer script. Therefore, your time is very precious. If you have a knowledge, or you have a capacity to write more and more, still you have to confine it within 100 words, not more than 100 words. It will save your time. Let's discuss what the first question is. First question is, write a paragraph on moral education need of the hour. Moral education is need of the hour because we have crossed all the barriers as far our morality is concerned, whether it is your self-respect, self-introspection, it is the relation between you and your parents, and the link between you and your teachers, and the dedication you show to your place, your village, your town, your neighborhood. And in order to give a boost in such like characters in your own self, and you must be equipped with highly and valuable moral education. And we are supposed to write a paragraph on this, and we must insist or stress during in our writing that it is need of the hour. Without moral education, we are unable to do nothing. We are unable to do anything. Right? Now, let us see first question. If those boys who are interested on writing paragraphs, for them we will
give some tips here. Now, what are the paragraph? What is a paragraph? Paragraph, it is actually a word which comes from two Greek words. They are para, which means beside, and graphein, which means to write. In former times, the paragraphing was considered a form of punctuation. Even today, it suggests that the reader is to make a major pause in this progress for several seconds and to prepare himself for a new unit of writing. But in our study, the paragraph we are concerned with a single short piece of writing deals with one idea or a single theme. Right? मतलब यह है कि पुराने या फॉर्मर टाइम्स में पैराग्राफ को ऐसे समझा जाता था कि ये एक ऐसी राइटिंग थी जिसमें पंक्चुएटिंग मार्क्स काम करते थे और आपको मुख्तलिफ जगहों पर कुछ सेकंड्स के लिए पाज लेना पड़ता था या रुकना पड़ता था ताकि जो सही मतलब था आपका वो लोगों तक या आपके सुनने वाले जो हैं या पढ़ने वाले जो हैं उन तक पहुंच जाए। लेकिन आजकल जो हमें कहा जाता है या हमें जो करना होता है कि पैराग्राफ जो है ये एक ही पीस राइटिंग का होता है जिसमें एक सिंगल आइडिया आपको डिस्कस करना होता है या जिसमें एक सिंगल थीम होता है। ये करना ज़रूरी है, यानी पैराग्राफ में अब बहुत सारे पैराग्राफ नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके एसेंशियल फीचर्स क्या है, पैराग्राफ के जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पैराग्राफ इज यूनिटी ऑफ थॉट। यूनिटी ऑफ थॉट का मतलब है कि आप जब पैराग्राफ लिखेंगे कि आपके सोच में वो यकसानगी होनी चाहिए। It means that your paragraph should be well knit. In this, the unity should be maintained when the whole piece of writing is developed around the topic sentence. जो टॉपिक सेंटेंस होता है, जो ऊपर जो आपका लिखा होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मॉरल एजुकेशन नीड ऑफ द आवर, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस बन गया। एंड ऑल योर सेंटेंसेस शुड रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक सेंटेंस। एंड digressions in this regard are always harmful as further evaluation of your paragraph is concerned. The evaluators will not estimate you 100% if you have made some digressions in this regard. First thing. Next is what we have to keep in mind. There must be clarity in organization. Clarity in organization, जब आप ऑर्गेनाइज करोगे अपने सेंटेंस तो उसमें बिल्कुल सफाई के साथ, वजाहत के साथ इनको ऑर्गेनाइज करना होता है। Means they should be placed in such a manner as to make it very lucid, make it very clear, well knit and comprehensible. The readers must comprehend what your intention
what you wanted to convey in your paragraph. ये दूसरी चीज है. तीसरी चीज, it is coherence. It is most important quality of the paragraph. It means that the sentences you are compiling or you are writing must be interlinked. जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं पैराग्राफ में एक के बाद दूसरे, तो ये एक दूसरे से जैसे जुड़े हुए होते हैं. एंड there should be a sense of smooth and uninterrupted flow of mind. अरेंजमेंट इनका ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई धार टपक रही हो आपके माइंड से, कतरों की धार, ऐसे आपके सेंटेंस पैराग्राफ में होने चाहिए. एंड नेक्स्ट थिंग that we have to keep in our mind is that the length of the paragraph. Length of the paragraph, in as far our question is concerned, here is written that it should be 80 to 100 words, not more than that, because it is save your time. But you have to keep one thing in your mind, that you should convey the theme of the topic within these limited number of words. जो भी आपको वर्ड्स बता दिए गए हैं, यानी 100 वर्ड से 100 या 100 वर्ड से कम आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, आपकी मैसेज या इंफॉर्मेशन जो भी है या मतलब आपका, वो कन्वे होना चाहिए इन ही सेंटेंसेस में से. ठीक, तो अब आपको करना क्या है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू. आपने जब ये चीज़ें माइंड में रख दी, पहले क्या लिखा कि आपका यूनिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, आपको क्लैरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए आपके सेंटेंस में, आपके सेंटेंस कोहेरेंस इनमें होनी चाहिए, यानी इंटरलिंक्ड होनी चाहिए. और लेंथ ऑफ पैराग्राफ वो तो दिया गया है, आपका पैराग्राफ जो है 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पैराग्राफ के अंदर आप पैराग्राफ नहीं डाल सकते हैं. तो इन चीज़ों को पहले ख्याल में रखकर अब जब आप स्टेप उठाएंगे, आपको करना क्या है. पहले you have to think about the topic or the given idea. जो भी आपका टॉपिक है, जो आइडिया आपका दिया गया है, इसके बारे में आपको पहले सोचना है. लिखने से पहले ही सोचना है कि आप कैसे शुरू करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें आप लाएंगे. Prepare in outline and arrange the points in a proper sequence. आप एक इसका खाका खींचेंगे, एक पेज ऑफ, अगर आपके पास टाइम है, एज अ रफ इस्तेमाल करेंगे. इसमें एक आउटलाइन खींचेंगे, सेंटेंसेस को कंपाइल करेंगे, मुख्तलिफ सेंटेंस आप बनाएंगे, और इन सेंटेंसेस को आप प्रॉपर ऑर्डर में फिर बना देंगे जब आप फाइनल सेटिंग इसकी दे देंगे. ठीक है. स्टार्ट विद ए सेंटेंस विच शुड स्ट्रेटवे एक्सप्रेस द मेन थीम. आपको सबसे पहले वो सेंटेंस लिखना है कि जिसमें मेन थीम जाहिर किया गया हो. आपको यकसानगी सेंटेंस, आपके जो सेम सेंटेंसेस या रेपिटेशन सेंटेंसेस में आपको नहीं दिखानी है, वो आपको अवॉइड करनी है. या आपको इधर उधर की बातें जो इंसान को समझ में ना आती हो, या आपके थीम या मेन आइडिया से वो मुनहरिफ की होती हों, ऐसी चीज़ें आप करने से आपको परहेज़ करना चाहिए. आप कंट्रास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप
अपने इस पैराग्राफ में आप मवाजना भी कर सकते हैं अपने सेंटेंस से मुख्तलिफ चीज़ों से। पैराग्राफ को जैसे मैंने पहले बता दिया, इसको आपको सब डिवाइड नहीं करना है पैराग्राफ को, फिर आप बहुत सारे 2-3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे, बल्कि जो ही आपने शुरू कर दिया तो 100 वर्ड्स पर आपका फुल स्टॉप बनना, लास्ट सेंटेंस आप लिखेंगे विदाउट एनी पैराग्राफ। तो ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे। फिर पैराग्राफ्स की भी किस्में होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ्स। एक होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, बायोग्राफिकल पैराग्राफ्स होते हैं, नैरेटिव पैराग्राफ्स होते हैं, ऑगमेंटेटिव पैराग्राफ्स, साइंटिफिक पैराग्राफ्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ्स होते हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों को हम ज़्यादा एट लेंथ हम डिस्कस नहीं करेंगे, ना हमारा वो इस वक्त वो टॉपिक है, बल्कि टॉपिक हमारा ये है कि हम पैराग्राफ को कैसे लिखेंगे और कैसे इस पर हम काम करेंगे, ताकि जैसे हमें एडवाइस किया गया हो एग्ज़ामिनर की तरफ से, वो जैसे क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज होती है वो कैसे हमें क्या बता रही है कि आपको क्या करना है, उस चीज़ से हम तजावुज़ ना करें, उस चीज़ से हम इनहराफ ना करें। ठीक है, तो ये हमारा आज का हो गया कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। पैराग्राफ के हम कुछ जो एग्ज़ाम्पल्स जो हैं यहाँ इसमें जो आपके 2-3 मॉडर्न पैराग्राफ्स हम यहाँ पर अपलोड भी करेंगे, जो आप देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। ये आइंदा लेक्चर्स में होगा। एंड दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।